ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. કેવી ગઈ બધાની દિવાળી વેકેશન? સારી ગઈ છે. દિવાળી વેકેશન ફાઇન ગઈ બધાની? હા સર. ફાઇન ફાઇન. સુરતના બહાર ગયેલા? ના. બરાબર છે. હવે બે વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે બધાને. હા સર. પહેલું કે ખબર છે કે 19 ડિસેમ્બર થી સેકન્ડ મિડ ટર્મ છે તમારી, જેમાં યસ સર. એવરેજલી 4 to 5 ચેપ્ટર્સ વી આર ટેકિંગ. બરાબર છે. તમને કોર્સ આપી દીધો હશે, રિસ્પેક્ટિવ ટીચર છે. બરાબર, એટલે એનું તૈયારી કરતા રહેજો. અને 4 કે 5 ચેપ્ટર જ છે હર સબ્જેક્ટના અંદર, એટલે એમાં એવું કઈ લાગતું નથી કે આને તમે એકાદ વીક કોઈ પોસ્ટપોન કરાવો. અને આને હા સર. પરફેક્ટલી થરલી તમે તૈયારી કરજો કે 4 કે 5 જ ચેપ્ટર છે, તો યુ કેન ફોકસ. અને ક્વેશ્ચન્સ તમે સોચો કે આ 4 કે 5 ચેપ્ટર જ છે અને 100 માર્કની તમારી એક્ઝામ થતી હોય, તો ઓલમોસ્ટ આખા ચેપ્ટરનું જે ટીચર્સ જે છે તમારા સબ્જેક્ટના, તે આખું એનું નિચોડી કાઢશે, આખું નેક્ટર આવી જશે. એટલે બોર્ડ રિલેટેડ જેટલા બી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ છે કે જેટલા થિયરીઝ છે તે આ એક્ઝામના અંદર આ 4 યા 5 ચેપ્ટરમાંથી આવી જશે. એટલે આને બહુ સિરિયસલી લેજો, જે તમને તમારા બોર્ડના પ્રિપેરેશનમાં ઘણું યુઝફુલ થશે. આને લાઇટલી ના લેજો. પેલું તો એ. બીજું કે બેટા ડિસેમ્બર ઓલમોસ્ટ શરૂ થઈ જશે. આજે 28 તારીખ તો થઈ ગઈ. જે બચ્ચાઓની ફીસ આવી ગઈ છે ઓકે, પણ જે બચ્ચાઓની ફીસ નથી આવી એના માટે મેં ખાસ કહું છું. બરાબર છે, તો એને જરાક સિરિયસલી લો. ફીસ માટે 30 તમને 2 ઈમેલ આવી ચૂક્યા છે હમણાં સુધી, એક મેસેજ બી આવી ચૂક્યો છે, અને ગઈકાલે કે પરમ દિવસે તમને કોલ પણ થઈ ચૂક્યા છે. એટલે ડિસ્પાઇટ ફ્રીક્વન્ટ રિમાઇન્ડર્સ થ્રુ ડિફરન્ટ મીડિયમ, ફીસ હજી સુધી આવી નથી. 30 તારીખ જે છે તે લાસ્ટ આપને મૂકેલી છે. Q1 ની જ બાકી છે, હજી તો Q2 તો કાઢે. તો બધા સ્ટુડન્ટ્સને એમાં કોઈ પર્સનલી લેવાની સર જરૂરત નથી. Q1 તો ભરાઈ ગઈ છે. હા, જેની હા ભરાઈ સર. ગઈ હોય બેટા, જેની ભરાઈ ગઈ અરે હોય તેને Q2 આવ્યો છે એટલે એમ પૂછું છું. હા, હા Q2 નું બી એક રિમાઇન્ડર આવેલું છે. એક હમ્બલ રિમાઇન્ડર આવ્યું છે એટલે બેટા. હા, મેલ નથી, મેલમાં હા હજુ સર. સ્ટેટસ નથી કરેલું. મને નવો જે મેલ આવ્યો હા, છે છે. હા એટલે અત્યારે જોઈ જરાક લેજે. અમાઉન્ટ નથી કરું, પણ તું જોઈ લેજે. અને અમાઉન્ટ હોય તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ પ્રિયંકા મેડમ અને રોહનભાઈ. બરાબર છે. અને ઓકે તમે સર. Q1 ની જે તમારે કેવી રીતના અમાઉન્ટ ભરવાની છે, ઈમેલ તમે જોયો જ હશે. જે તમારે રિલેક્સેશન છે, ફી રિલેક્સેશન, એના હિસાબથી તમને કેટલું પે કરવાનું છે તમને હરેક સ્ટુડન્ટને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મોકલવામાં આવ્યું છે. કે ભાઈ એક્ઝામ્પલ માધવની આટલી આવી ગઈ છે, આટલી બાકી છે, રિલેક્સેશન આટલી છે, આટલું ભરવાનું થાય છે. બરાબર છે. હા સર. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બધાને એવી રીતના આપણે મોકલેલું છે. ફરીથી લાસ્ટ વખત કહું છું, એને જરા સિરિયસલી લેજો પ્લીઝ. ફીસ માટેનું 30 તારીખ લાસ્ટ છે. યુ કેન પે ઓનલાઈન ઓલ્સો. બરાબર છે. સ્કૂલમાં આવવાની જરૂરત નથી. તમને ચેક નંબર કે IFSC કોડ એવું કે કંઈ પણ જોઈતું હોય તો કાઇન્ડલી કોન્ટેક્ટ રોહનભાઈ યા પ્રિયંકા મેડમ. બરાબર છે. ચલો, તો બેસ્ટ ઓફ લક 19 ડિસેમ્બર માટે. મળીએ. હા સર. ઓકે સર. આજે જે એકમ कसौटी वाળું છે सर Q1 और Q2 दोनों का मैंने मेल भेजा है, હા, મને तो ખબર છે. टर्म 1 की હા, फीस आपको पे करनी है स्टूडेंट्स. ઓકે મેમ. Q1 ને Q2. હા, હા સર. સર આજે જે એકમ कसौटी છે તે શું છે? અમારે એ કમ્પલસરી તમને અપાય છે? ઓનલાઈન તમારે જોઈન થવાનું રહેશે બેટા. ઓકે ઓકે. સર. હા, અને જે ટાઈમિંગ જે આપેલા છે, જે સબ્જેક્ટના હિસાબથી ઓનલાઈન એક્ઝામ તાથી તો જ લઈ સર એ લેશે. તો હવે પહેલા 12:15 1 છે. સર હા, એ હા રૂલ સર. બહુ અજીબ છે. જેટલા નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ સર વધારે જોઈન થઈ શકે તો સારું છે. ઓકે સર. હા એટલે અપાઈ દઈશું સર સર. આપણો તો ક્લાસ હશે ને સર ટેસ્ટ વખતે? હા, હા એટલે ક્લાસ જ ઓફ પૂછતો ટેસ્ટ હતો. હશે. હવે ગઈકાલે દીકરા રાતે એકદમ ઓલ ઓફ અ સડન અમને મેસેજ આવ્યો, તો વી હેવ જસ્ટ બ્રોડકાસ્ટેડ ઇટ. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમથી ધ્યાન રાખવું કે એ લોકો એટલા શોર્ટ નોટિસ પર આપે, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ કે આપણે કંઈક એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ કે આપણું કન્ટિન્યુઅસલી બધા લેક્ચર ચાલતા જ હોય છે. નેક્સ્ટ ટાઈમથી એ લોકો કોઈ ટાઈમ આપે તો આપણે એડજસ્ટ કરશું પછી. સર 12:15 વાગે તમારો બાયોલોજી બાયોલોજી ચાલતો 12:15 હશે. વાગે લેક્ચર હશે, કદાચ લેડીઝ અને અંજલિ મેડમ નો હોવો જોઈએ. હા સર એમનો બરાબર ને? હશે. અને લાસ્ટ સર હા, બસ કોમ્પ્યુટર નો છે. તમે 15 મિનિટ જરા એમને રિક્વેસ્ટ કરીને એ કરી દેજો.
ઓકે સર. પણ એક્ઝામ આપવાનો હોય તો પછી તમે ત્યાંથી નીકળી બી જાઓ ને પછી એક્ઝામ બી ના આપે એવું ના થાય. ના સર આપીશું ને પછી. ઓકે ઓકે હા. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. नहीं मेल में स्टूडेंट्स हाँ मेल में सर. मैंने आपको, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू पे द फीस फॉर द टर्म वन। ठीक है, तो टर्म वन में आपका क्वार्टर वन और क्वार्टर टू दोनों आ गया है। हाँ माधव, वो जरा कृष्ण थोड़ा और हाँ, और शायद आदित्य, आप तीनों की क्वार्टर वन की फीस आई है, क्वार्टर टू की बाकी है। तो क्वार्टर टू की फीस हाँ. भी आपको पे करनी है। ठीक है, तो ओके उसके मैम. बाद आपका टर्म वन खत्म हो जाएगा, टर्म वन की जो फीस है वो। ठीक है, तो वहां पे जो मैंने आपको मेल भेजा है वो आपको डिडक्शन 25% का जो ट्यूशन फी पे डिडक्शन है वो काउंट करके ही आपको सबको भेजा है कि आपको कितना पे करना है। ठीक है, जो फर्स्ट मेल था, ठीक है, वो पूरा टर्म वन का है, तो उसमें क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों आ गया है। ओके मैम. ठीक है, और बाकी तो सबकी बाकी फीस पूरी ही पूरी की बाकी है। ठीक है, क्वार्टर वन की भी बाकी है, क्वार्टर टू की भी बाकी है। तो उस हिसाब से मैंने वहां पे कैलकुलेशन करके सबका अलग अलग जो आता है अमाउंट, वो इंडिविजुअली भेजा है मैंने। तो उस हिसाब से अगर चेक ला रहे हो तो उस हिसाब से लाना। ठीक है, મેમ હવે જે ચેક લેવાનો 30,000 રૂપિયાનો ચેક લેવાનો છે. મેં તારા મેલમાં લખેલું જ છે, મેલમાં એ જોજે। મેળામાંથી બહુ ગૂંચવાડો છે મેમ કે જો એટલે ટોટલ ફર્સ્ટ પેબલ ફીસ, ટોટલ પેબલ ફીસ એટલે જે આખો રકમ છે તે જ ને. લાસ્ટ લાસ્ટ તારું તું સ્ક્રીન શેર કરી શકતો હોય તો કર, હું સમજાવી દઉં। ઓકે કરી દઉં. દેખાય છે મેમ? देखो उसमें क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट पेएबल फीस कितनी है तेरी? 10,000। इसको बोलो ना घुमाने के लिए थोड़ा सा। रोटेट कर भाई, स्क्रीन रोटेट कर। हेलो अरे स्क्रीन स्क्रीन रोटेट कर यार। सर, वो आप में से करना पड़ेगा, मेरे में से स्क्रीन रोटेट करूंगा तो दिखाई नहीं देगा आपको। अरे तो क्या लैपटॉप को घुमावे हम लोग, उल्टा रखे लैपटॉप को, हाँ ऐसा। हाँ, देखो क्वार्टर वन की हाँ. फीस आपकी, हाँ, कितनी है? 19,500। ठीक है, क्वार्टर टू की हाँ. 19,500। ठीक है, उसके ऊपर आपको रिडक्शन मिल रहा है 9750। राइट, हाँ और आपने पहली फीस कितनी पे की है? 20,000 पे की है, तो आपको अब कितने का चेक लाना है? 10,250 का। बराबर, तो तारी टर्म ओके वन की फीस અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જશે। ઓકે મેમ. ओके બરાબર, એટલે બધાએ છેલ્લી કોલમ જોવાની છે કેટલી ફીસ બધાની પેન્ડિંગ છે। બધાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેશન તમને આપેલું જ છે કરીને। और ये टर्म वन क्लियर होगा, टर्म वन का हाँ, कैलकुलेशन है ना ये। ये टर्म वन का कैलकुलेशन है, और टर्म टू का क्वार्टर थ्री का भी मैंने भेज दिया है, वो आपको 15 दिसंबर तक पे करना है। उसका रिमाइंडर मेल भी ये मैंने कर ही दिया है आपको। अब कोई डाउट है किसी को? चलो बंद दो। આના પછી કેટલી બાકી રહે છે મેમ? ક્વાર્ટર થ્રી ની મેમાં લખેલું જ છે, તારા મેલમાં એ જોઈ લેજે। બરાબર, ઓકે ઓકે, ક્વાર્ટર ટુ નો ક્વાર્ટર થ્રી સાથે આપી તો વાંધો નહીં ને? હા, વાંધો નહીં। पगले
चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अभी। हाँ सर। आदित्य पंकज के अलावा कौन एब्सेंट है और? मुर्तजा एब्सेंट है ऐसा? नहीं सर, मुर्तजा आवे છે एक्चुअली છે ને। हाँ सर, उसका नेट जरा प्रॉब्लम है ना सर, तो अंदर बाहर हो रहा है कब का। यार कैसे करते हैं ये? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा यार। हैं सर, वो ऊपर सर टाइप करते, रुक जाओ। हाँ बस चालू किया चालू किया। हाँ बोल अभी तो बोल। हाँ सर, वो हाँ अब मुर्तुजा है ना, उसका नेट खराब है ना, तो अंदर बाहर हो रहा है। अच्छा मतलब आया है ना। हाँ हाँ, वो आया है। चलो ठीक है। तो अभी हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट चल चल रहा था। हाँ देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हम लोग पढ़ रहे थे बेटा है ना। क्या फॉर्मूला, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने पीओएच बॉन्ड, कितने पीएच बॉन्ड, ये सब की बातचीत हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर ली थी। इनफैक्ट मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग खुद से कर लेना है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना बेटा आता ही है हम लोग को अब। और स्ट्रक्चर एक बार बना लिया तो कितने पी एच बॉन्ड है और कितने पी ए ओ एच बॉन्ड है और कितने पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, इसकी काउंटिंग तो हम लोग। ठीक है। अब इसके अंदर है ना एक प्रिपरेशन वाली कॉलम भी है, तो वो प्रिपरेशन वाली कॉलम को भी थोड़ा सा देख लो। तो ट्रिक से याद रखने की कोशिश करते हैं इसको। देखो H3PO2 और H4P2O6 इनका प्रिपरेशन बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है। एक +1 वाले का और एक +4 वाले का। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर से पहचान तो सकते हैं ना इन लोग को। H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और H4P2O6 में उसका +4 होता है। तो +1 और +4 वाले का देखो बिल्कुल प्रिपरेशन कॉमन है कि अल्कली मतलब बेस के साथ में ही रिएक्शन करानी है। पहले वाले में हमने लेना है व्हाइट फॉस्फोरस और दूसरे वाले में लेना है रेड फॉस्फोरस। अरे हाँ ना बोलो, बराबर बोल रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। +1 और +4 वाले को ऐसे याद कर लो आप लोग कि अगर हमें कोई ऐसा फॉस्फोरिक एसिड बनाने को आता है, ऐसा ऑक्सो एसिड बनाने को आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाइट फॉस्फोरस में अल्कली डाल देना है। और +4 वाला बनाने को आता है तो रेड फॉस्फोरस में अल्कली को डाल देना है। ठीक है। तो ये एक याद रखने की ट्रिक हो सकती है बेटा, ये याद रख लो आप, दो तो ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो +3 वाला है और +5 वाला है, H3PO4 और H3PO3,
एक फॉस्फोरस एसिड है और एक फॉस्फोरिक एसिड है, दोनों ही ऑर्थो, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसको भी ऐसा बनाना तो इजी लग रहा है। क्या करना है हम लोग को, पानी के साथ में रिएक्शन करवानी है फॉस्फोरस के ऑक्साइड की। एक है P2O3 और एक है P4O10, फॉस्फोरस के ऑक्साइड ही हैं। P2O3 के साथ में H2O की रिएक्शन कराओगे तो H3PO3 मिलेगा, और P4O10 की रिएक्शन H2O से कराओगे तो H3PO4 मिलेगा। एक H3PO3 और एक उसका ऑक्सीजन ज्यादा है H3PO4, H3PO3 और H3PO4। एक में P2O3 है और एक में P4O10 है, फॉस्फोरस के ऑक्साइड है, और रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग H2O के साथ में। तो ये चार तो हम लोगों को ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये H4P2O7 का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। दो फॉस्फोरिक एसिड एक दूसरे के आजू बाजू लिख के H2O को रिमूव करना होता है और बाकी को जोड़ देना होता है। कल याद है आपको, मैंने बताया था ये दो OH होते हैं ना, उसमें से एक H2 रिलीज करके POP वाली लिंकेज बनानी होती है हम लोग को। अरे याद है कि नहीं? हाँ सर। तो हाँ उसको कैसे सर, करेंगे हम लोग? बताया था आपने ड्रॉ करके। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड को हम्म, ही हीट करना होगा, और क्या करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड को जब हीट करोगे तो उसके अंदर से H2 रिलीज हो जाता होगा और H4P2O7 बनता होगा। तो इसका प्रिपरेशन और भी इजी है, खाली क्या करना है, हीट फॉस्फोरिक एसिड, दैट्स इट। ठीक है। अब बचा अपना एक लास्ट HPO3 n टाइम्स, मतलब पॉलीमेरिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो बनाना है। तो उसमें क्या करना है आपको, फॉस्फोरस एसिड को Br2 के साथ में हीट करना है इन अ सील्ड ट्यूब। तो ये आपको अभी याद करना पड़ेगा। फॉस्फोरस एसिड जो है H3PO3, इसको हम लोग को Br2 के साथ में हीट करना है सील्ड ट्यूब के अंदर, तो आपको मेटा फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है। और एक फॉस्फोरस एसिड का रिएक्शन PCl3 से रिएक्ट करके करवा के H4P2O5 जैसी चीज बनती है। तो टेबुलर कॉलम है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा हम लोग को। हमारे एंट्रेंस लेवल पर प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोग को इसके अंदर। ठीक है। कल आप लोग बता रहे थे शायद कि फॉस्फोरस हमारे बोर्ड सिलेबस में से निकाल दिया है, ठीक है। तो लेकिन एंट्रेंस में इसके प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या बनेगा फॉस्फोरिक एसिड को अगर हीट करेंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो ये पता तो हम लोग को इस टेबल से ही चलेगा ना बेटा, H4P2O7 बनेगा। ऐसा पूछेंगे कि व्हेन फॉस्फोरस एसिड को हीट करा जाए सील्ड ट्यूब के अंदर Br2 के साथ में, तो इसमें से क्या बनेगा। तो चारों ऑप्शन में से अपने को मेटा फॉस्फोरिक एसिड को सिलेक्ट करने आना चाहिए। व्हाइट फॉस्फोरस को अल्कली के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो H3PO2। रेड फॉस्फोरस को अल्कली के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला H4P2O6। P2O3 को H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो H3PO3। P4O10 को H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो H3PO4। ठीक है। और एक हम लोगों ने याद रखा है, फॉस्फोरस एसिड का ही रिएक्शन PCl3 के साथ में होगा तो H4P2O5 बनता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। चलो बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। है ना। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये याद रखने की ट्रिक भी अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। H3PO3 को डबल करके H2 रिलीज करना है बस खाली। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला अगर जनरेट करना है हमको, H3PO3 को डबल करो तो कितना हो जाएगा, H6P2O6। ऐसी होगा ना, H3PO3 अपने पास है, उसको डबल करोगे तो H6P2O6 होगा। और H6P2O6 में से अगर मैं H2O को रिमूव कर देता हूं तो 6 के 4 हाइड्रोजन हो गए, फॉस्फोरस का उतना रहा, और 6 ऑक्सीजन में से एक निकल गया तो O5। तो ऑर्थोफॉस्फोरस में से पायरोफॉस्फोरस बनाने का तरीका ये होता है।
बोलो, क्लियर है ना? और वैसे ही ऑर्थोफॉस्फोरिक में से पायरोफॉस्फोरिक बनाने का कोई तरीका हाँ होता सर। है, डबल करके H2 रिलीज करना होता है। और इसमें चेक भी कर सकते हो आप, H3PO4, ऑर्थो से पायरो जाने का ये तरीका है बस। ऑर्थोफॉस्फोरस से पायरोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक से पायरोफॉस्फोरिक। H3PO4 को डबल करोगे तो H6P2O8 आएगा, H2 कम करोगे तो H6 का H4 हो जाएगा, P2 का P2 रहेगा, O8 का O7 हो जाएगा बस। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के H2O को रिलीज करके सिखाया था। तो पायरो वाले होते हैं ना, वो इसी तरह से जनरेट किए गए होते हैं। बराबर है? तो ये आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बहुत एम्फेसिस दे रहा हूँ इसके ऊपर। तो एक बार जब भी आप लोग पढ़ो तो ये सब चीजें अंडरलाइन करी हुई होनी चाहिए, ये टेबल को अच्छे से रिवाइज करा हुआ होना चाहिए, तो आप फिर इसके कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। कल ये सारे हम लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है? और कुछ बातें हैं इसके अंदर, उसको भी अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। सब बता तो दिया है। फॉस्फोरस जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स, एक पी डबल बॉन्ड O होता है, POH बॉन्ड होते हैं, PH बॉन्ड होते हैं, ये सब एक दूसरे से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं, ठीक है? जैसे H3PO3 की ही अगर मैं बात करता हूं तो P डबल बॉन्ड O, एक OH ऐसा रहे, एक OH ऐसा रहे, और एक OH ऐसा रहे, तो ये टेट्राहेड्रली तो हुआ ना। और एक POH बॉन्ड तो होता ही होता है, और एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो होता ही है, मतलब ये तो कंपलसरी होगा, और एक POH भी कंपलसरी होता है। हाँ, फिर यहाँ पर OH की जगह पे किसी किसी में सिर्फ H आ जाता है, तो PH बॉन्ड भी हो सकता है, POH बॉन्ड भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है? तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। The oxo acids in which phosphorus has lower oxidation state less than 5 contains in addition to P double bond O and POH bond either PP bond और PH bond, ठीक है? ये सब हमने स्ट्रक्चर में देखा हुआ है ना? PP बॉन्ड भी उसके अंदर होते हैं और PH बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है? These acids in +3 oxidation state tend to disproportionate to higher and lower oxidation state, ठीक है? जैसे H3PO3 है, H3PO3, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? H3PO3 में फास्फोरस का किसमें सर? H3PO3 में बेटा, फटाफट बोलो। सर +3 +3 होगा। 3 ये वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं ना, टेंड्स टू डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जब हम लोग 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे तो वहां पे पढ़े थे कि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही एलिमेंट सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। अब चेक कर लो बेटा, H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और PH3 में P का क्या होगा? H3PO4 में P का कितना है? अरे +5 होगा कि नहीं? निकालने आ रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ सर हाँ सर +5 +5 होगा। हाँ सर। और PH3 के अंदर कितना होगा? -3 -3। और H3PO3 में कितना था? +3। तो हम लोग बोल रहे हैं कि फास्फोरस +3 से +5 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और +3 से -3 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है? इन एसिड्स के पास में पीएच बॉन्ड होने के वजह से इनके पास में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, रिड्यूस कर सकते हैं ये किसी को।
ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं AgNO3 है। अगर मैं H3PO2 के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो H3PO2 खुद क्या होता है, H3PO4 में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। तो जो इसके अंदर सिल्वर होता है ना AgNO3 में, जो Ag+ के फॉर्म में है, वो Ag0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। बराबर है। और ये सब बातें बेटा आपको पहले से पता होगी। जैसे आपके पास में H3PO3 है, H3PO3, तो इसका शेप कैसा होगा कि डबल बॉन्ड हो, OH OH और H जगह के हिसाब से मैंने ऐसे बनाया। देखो बराबर है, ये H3PO3 का ही स्ट्रक्चर है ना। अब इसके पास दिखने के लिए तो तीन हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, तो वो आयोनाइजेबल नहीं होता। जो HO से जुड़ा हुआ होता है वो एसिडिक होता है। तो मैंने पहले भी पढ़ाया होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो H3PO3 है ना, वो डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक क्यों है? क्योंकि उसके पास में H देने को खाली दो ही है, भले से दिख तीन रहे हैं। और यही काम अगर H3PO3 की बात करें तो वो ट्राई बेसिक होता है। ट्राई बेसिक क्यों होता है? देखो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब H3PO3 तो तीन तीन हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये ट्राई बेसिक हुआ। बोलो, ठीक है, समझा पाया मैं आपको? अरे हाँ ना बोलो बेटा कुछ फटाफट। तो समझ में आया आप लोग को ये बेसिसिटी वाला पार्ट? हाँ सर। है ना। H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होगी? सर कौन किसकी? H3PO2। PO2 सर डाइबेसिक। H3PO2 बोल रहा हूँ यार। सर तो दो H3PO2 सर ये इसमें से लिंक भेजिए सर। हाँ हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग। हाँ H3PO2 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इसका? सर मेरे को लगा कि दो ऑक्सीजन है ना तो दो H के साथ हो गए। नहीं, लेकिन एक पी ये डबल ये बॉन्ड। मोनोबेसिक होगा। हाँ मोनोबेसिक होगा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको कि ये जो पीएच है ना, ये H+ के फॉर्म में नहीं निकलता। ये जो H है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, वो H+ के फॉर्म में नहीं निकल सकता बेटा, खाली यही निकलेगा। तो रिप्लेसेबल H इसके अंदर एक ही होने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे कैसा? मोनोबेसिक। बोलो ठीक है, क्लियर? H3PO3 होता है तो डाइबेसिक, और H3PO4 होता है तो ट्राई बेसिक। बस वही समझाने की वो कोशिश कर रहा है बेटा। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन इन TOH बॉन्ड फॉर्म आर आयोनाइजेबल एंड कॉज द बेसिसिटी। इसलिए फिर H3PO3 को डाइबेसिक बोला, H3PO4 को ट्राई बेसिक। ठीक है। एग्जाम्पल यस नंबर 3.9।
बोल रहा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अभी तो बनाया हमने। इन H3PO2 टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फॉस्फोरस एटम। तो हम लोग बोलेंगे कि विच इम्पार्ट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? क्या है H3PO4 की बेसिसिटी? 3 है ना, अभी बताया ना। H3PO4 में मेरे ख्याल से बना हुआ भी है, H3PO3 बना हुआ है। ये H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? फटाफट बोलो यार, बेसिसिटी ऑफ H3PO4 सर कितनी होगी? 3 ही होगी। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया H3PO3 को हीट करते हैं तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये हम लोगों ने देखा बेटा, ये वाला देखा ना। यस सर। H3PO3 से H3PO4 बनता है और साथ में PH3 भी बनता है। +3 से वो +5 में भी जा सकता है और +3 से वो -3 में जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही रिएक्शन आपको डिसप्रपोर्शनेशन वाली बस लिख देनी है। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को ग्रुप नंबर 15 में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 16। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, इनको हम लोग चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। मैंने कभी ना कभी आपको बताया भी होगा। चैल्कोस का मतलब होता है और जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओर फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं जनरली जो ओर मिलते हैं ना। और हम लोगों ने देखा था ना बेटा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हम लोगों ने जो मेटलर्जी चैप्टर में देखा था, वो देखा था कि जो भी एलिमेंट जिसकी हम मेटलर्जी कर रहे हैं, या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में रह रहा है या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। लेड का था क्या, लेड सल्फाइड। ठीक है, जिंक का क्या था, जिंक सल्फाइड। आयरन का क्या था, Fe2O3। तो ये सब जो मेटल होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि ये ओर के अंदर हमारे मेटल के साथ में रहते हैं। तो ये ओर फॉर्मिंग हुए, इसलिए इसको हम लोग चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। बोलो ठीक है। बाकी सेलेनियम, टेलोरियम और पोटेशियम इसका और फॉर्मिंग नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर को देख के ही इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा, चैल्कोजेंस। ठीक है, अब कुछ ऑकरेंस की बातचीत कर ले, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन देख लो। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। बंद करना क्यों? हाँ यार देखो ना यार। ठीक है, और क्या लिखा है, ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ द अर्थ। का ये डेटा के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बेटा, खाली एक इंफॉर्मेशन है, तो अंडरलाइन करते हुए चलो। ठीक है, एक ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ये सब आपको पता था। ये सब जो नाम है ना, अभी ये सल्फर के बारे में बता रहा है, जिप्सिम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, CaSO4.2H2O का नाम जिप्सिम। MgSO4.7H2O, इसका नाम होता है इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम का ओर है बेटा ये। मैग्नीशियम को रिमूव करना हो अगर हम लोग इसमें से रिमूव करते हैं। कैल्शियम को रिमूव करना हो तो जिप्सिम में से रिमूव करते हैं। ठीक है, एक और सल्फर कंटेनिंग है बेरियम का, बेराइट बोलते हैं इसको, सब अंडरलाइन करो। और सल्फाइड्स के फॉर्म में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो लेड होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है, उसको गैलेना बोलते हैं। ये पढ़ा था हम लोगों ने मेटलर्जी में। जिंक ब्लेंड ZnS होता है। और कॉपर की मेटलर्जी करने के लिए हमने कॉपर पायरेट का यूज किया था, वो CuFeS2 था। ठीक है,
तो ये सल्फर इस तरह से प्रेजेंट है। बाकी ऑक्सीजन की हमने बातचीत कर ली, सल्फर की बातचीत कर ली। ट्रेसेस ऑफ सल्फर ऑकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, उल, ये सब के सब सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ऑकरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये सब चीजें कहाँ पाई जाती है। तो बस ये सब खाली इंफॉर्मेशन था बेटा, एक बार मैंने रीड कर लिया, डाउट का तो कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। सेलेनियम और टेलुरियम, ऑक्सीजन और सल्फर की बातचीत करी। सेलेनियम और टेलुरियम कैसे रहते हैं? मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स इन सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के साथ में एज एन इंप्यूरिटी बोल सकते हैं प्रेजेंट होते हैं मेटल के सेलेनाइड्स और मेटल के टेलुराइड्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम है तो रेडियो एक्टिव, कैसे ऑब्टेन होता है? तो डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर से आपको पता होगा, थोरियम के अंदर से पता होगा, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट होते रहती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो डीके होते 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 पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोलोनियम ऑकर्स इन नेचर एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको कि पोलोनियम ऑकर्स इन नेचर एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको टिक करना रहेगा उसके अंदर थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक है, अब बात करते हैं फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब ये सब बातचीत हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 में जिस तरह से की है, बस ग्रुप नंबर 16 में भी बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सब चेंज हो जाएगा। बाकी टॉप टू बॉटम जो साइज इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये सब कुछ कॉमन रहेगा। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये सब के सब इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में जो बातचीत करी थी वो सब के सब इसके अंदर कॉमन रहने वाला है। तो फटाफट मैं अंडरलाइन करवा देता हूं आपको। कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा? NH2 और NP4। बोलो हाँ के ना। उसमें जो ग्रुप नंबर 15 में था NH2 NP3 था, तो अब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स द राइट एक कदम आगे बढ़ाया, तो एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया होगा NH2 और NP4। बोलो ठीक है ना? यस सर। है ना? अच्छा, एटॉमिक और आयोनिक साइज का क्या रहेगा? टॉप टू बॉटम क्या होती होगी बेटा? इंक्रीज होती होगी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती होगी? जब साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती होगी बेटा? डिक्रीज होती होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी जो ग्रुप नंबर 15 से कम होती है, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू ग्रुप 15। क्यों? वहां पे मैंने रीजन बताया था, वहां पे मैंने ऐसा बोला था कि ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा होती है, यहाँ पे बोल रहा हूँ कम होती है। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप नंबर 15 की ज्यादा होती है और ग्रुप नंबर 16 की कम। ऐसा क्या रीजन बताया था मैंने? क्या रीजन बताया था बेटा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर जो 15 होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 और NP3। जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बेटा? हाफ फिल्ड। यस सर। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ग्रुप नंबर 15 में से इलेक्ट्रॉन को निकालना वो कंपैरेटिवली हार्ड होता है, जिसके चलते ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। और ग्रुप नंबर 16 में तो क्या है? NP4 है बेटा। NP4 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो हाफ फील्ड बनने वाला है। इसका मतलब हमें तो कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूं ना बेटा? वो NP4 है, यस तो उससे इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो वो इजीली दे देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो NP3 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है जो कि हाफ फील्ड है। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 16 में एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है, ग्रुप नंबर 15 में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 की ग्रुप नंबर 15 के कंपैरिजन में लोअर होती है। बस यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ बेटा। ठीक है ना, ये सब हम जानते ही थे।
वहां पर मैंने ऐसा बोला था कि ग्रुप नंबर 15 की ज्यादा होती है ग्रुप नंबर 16 से। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ग्रुप नंबर 16 की कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। बात तो एक ही करी ना, अलग अलग थोड़ी करी। ठीक है, अच्छा अब ये Yes. भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक खास बात ये बताई है, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, और ये याद ही रखना है कि जो पीरियड नंबर जो 3 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट से ज्यादा होती है। मतलब सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, है ना। और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये तो गिव रीजन के फॉर्म में बेटा हम लोगों ने 11th के 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, क्या रीजन बताया था वहां पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, क्या रीजन था? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में F माइनस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। ऐसा क्यों? वाई क्लोरीन। और इनफैक्ट याद रखना बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एलिमेंट की सबसे ज्यादा होती है तो वो क्लोरीन की होती है। और ऐसे ही है ना, क्लोरीन से पहले क्या आता है? सल्फर। और फ्लोरीन से पहले क्या आता है? ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। एक ही बात है ना, रीजन तो वही आएगा, आजू बाजू है बस एक दूसरे के, और कुछ नहीं। और यही चीज फिर से आपको जब हम लोग ग्रुप नंबर 17 चालू करेंगे तो वहां पर जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा होगा ये बात। तो बात तो एक ही है, बस अलग अलग ग्रुप कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, जरा ध्यान से देख लो, ये मैंने आपको वहां पर की रीजन के फॉर्म में पढ़ाया ही था, वो ये भी देख लो। चलो, ये आपका क्लोरीन है 287, और जो फ्लोरीन होता है वो 2,7। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को हमने प्लस करना होता है वो शेल नंबर 3 में, और इलेक्ट्रॉन को जो प्लस करना होता है वो शेल नंबर 2 में। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि शेल नंबर 3 की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, और होते हैं उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन आके जोड़ना चाह रहा है। और फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, 7 पहले से है और एक आना चाह रहा है। ठीक है, वहां पे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया भी था कि माधव क्लास के बाहर है और मुझे कैसे भी करके उसको अंदर लेना है, और क्लास ऑलरेडी फुल है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी सब बातें मैंने करी हुई थी वहां पे। अब मुझे खाली इतना बताओ कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन किस केस में इजी लगता है आपको? सर क्लोराइन के केस में। क्लोरीन के केस में इजी है, क्यों? तो कैपेसिटी 18 की है ना, और 7 ही है और एक आ रहा है। जबकि फ्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी में 7 तो ऑलरेडी है और एक आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा फ्लोरीन में, तो ये एडिशन बन जाता है डिफिकल्ट। जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत इजी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाता है, जिसके चलते वो एनर्जी ज्यादा एमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है और सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। और वहां पर नेचर क्या लिखा? ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब छोटा साइज, छोटा ऑफ ऑक्सीजन। अरे बोलो, मैं समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, sir. है ना, तो ये Yes, बात sir. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी आप देख लेना। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है अप टू पोलोनियम, ये तो ट्रेंड है बेटा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ही होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज ही होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातचीत करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमको पता है, हमने याद किया हुआ FON सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, बाद में ऑक्सीजन और बाद में नाइट्रोजन। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। ये बताया ना मैंने आपको अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इंक्रीज होना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है मतलब कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं बेटा? मेटालिक कैरेक्टर। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये कि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। मतलब आप ऑक्सीजन से जब पोलोनियम की तरफ चल के जाओगे तो आप मेटालिक कैरेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट देखोगे। बराबर है बेटा? और ये मैंने आपको क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, एग्जांपल नंबर 7.10, ये मैंने आपको अभी करवा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। एक बार रीड कर लो बेटा फटाफट, चलो। Done, yeah, read, sir. बताया ना ये आपको मैंने, ग्रुप नंबर 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, तो ग्रुप उसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है, और ग्रुप नंबर 16 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में वो हाफ फील्ड बन जाएगा। तो ग्रुप नंबर 16 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम ही होगी ना। बस ये बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात हो रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सब तो देखो एक बार रीड करने से आ जाएगा, वैसे देख लेते हैं, अंडरलाइन करके रखते हैं। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स है, पोलोनियम मेटल है, रेडियो एक्टिव होता है, उसकी हाफ लाइफ होती है 13.8 डेज। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, ये एक पॉइंट लिख लो। ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, और सल्फर एग्जिस्ट करता है पॉलीएटॉमिक S8। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो कि टेबल में आएगा। अब इतना तो हमको पता चलता है बेटा कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करते ही होंगे। तो -2 उनका ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं -2 शो करने की टेंडेंसी कम होती है। सेम टू सेम बेटा, -2 की जगह पे वहां पे ग्रुप नंबर 15 में -3 था बस। अरे हाँ के ना? Yes, sir. बस यहाँ पे -2 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ना उनके पास। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वहां पे 5 थे तो 3 लेते थे। वहां पे -3 बनता था, यहाँ पे -2 बनेगा, और तो कुछ नहीं आएगा चेंज। और हमने ये भी बताया था, शायद आप लोगों में से ही किसी ने रीजन भी बताया था कि -2 शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम कम होती है। पोलोनियम जो है वो हार्डली -2 शो करेगा। ऐसा क्यों? आलिया शायद बोली थी, बोल दो बेटा। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली शो करते हैं, लेकिन -2 शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों? अरे टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। सर इंक्रीज। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो माइनस शो करने की टेंडेंसी तो कम होती चली जाएगी ना यार। हाँ सर। एक टेबल बना के दिया हुआ है, जो भी हम लोगों ने एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करी, बस वही है ये सब, है ना। ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ये हम लोगों ने रेडॉक्स जब पढ़ा था तो उसके एक्सेप्शन में पढ़ा था, OF2 मॉलिक्यूल। एक फ्लोरीन का -1 होता है, तो 2 फ्लोरीन का कितना होगा? -2। और -2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का कितना होगा? +2। Yes, sir.
ठीक है। बाकी के एलिमेंट जो हैं वो +2 के साथ में +4 के साथ में +6 इतने ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन their compounds विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेना। और ये भी मैंने बताया था कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और +4 की बढ़ जाएगी। और उसका रीजन बताया था मैंने आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे याद है कि नहीं? जो Yes, sir. इनर शेल के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग जाते हैं तो वो रिलक्टेंसी शो करते हैं कि हमें तो पैर के फॉर्म में ही रहना है, हमने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो जब वो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, तो +6 शो करने की टेंडेंसी फिर क्या हो जाएगी, कम, और +4 फिर वो लोग शो करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम यूजुअली शो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसका रीजन है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जैसे वहां पर हम लोगों ने एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देखा था, वैसे यहां पर एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्या देखने जा रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे वही सेम रीजन बताया था, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही रीजन है। क्यों नाइट्रोजन बाकियों से अलग है, छोटी साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। क्यों ऑक्सीजन बाकियों से अलग है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बराबर है। और ऑक्सीजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर सकता है ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है H2O में, जो कि H2S के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होती है। अरे पता है ना ये सब, यस सर। है ना। H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में है। और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस है। और वहां पे नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंट था, तो ऑक्सीजन के पास में भी डी ऑर्बिटल एब्सेंट ही होगा ना। मैक्सिमम कोवेलेंसी वो कितनी शो कर सकता है, और ज्यादातर तो हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस के अंदर तो रेयरली एक्सीड्स 2। आप देखोगे हमेशा बेटा कि ऑक्सीजन जो है वो ना 2 ही बॉन्ड बनाता है हमेशा। ठीक है, अब जैसे अगर आपको याद हो तो सबसे पहली हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो NH3 बनाता है, PH3 बनाता है, ये सब बनाते थे कि नहीं। वैसे ग्रुप नंबर 16 की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ में, वहां पे अगर आपको याद हो तो H3E आया था, EH3 टाइप। यहाँ पे H2E आएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ना, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो H2E टाइप के कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे H2O से H2E पर। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है आप लोग को। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं, वैसे क्या बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग वीक होते चले जाता है। तो बताया था कि नहीं। तो H के निकलने की टेंडेंसी कम होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी फिर क्या होते हैं, इंक्रीज। 1 मिनट, 1 मिनट।
ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बराबर सही कह रहा हूँ? देखो, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उनकी साइज कम होने की वजह से उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ना, वो स्ट्रांग होती है, तो वो बॉन्ड टूटते नहीं है जल्दी, तो वो कम एसिडिक होते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ती चली जाएगी, ओवरलैपिंग वीक होती चली जाएगी, तो H+ के निकलने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। बोलो, क्लियर है? हम्म। और जो थर्मल स्टेबिलिटी है बेटा, वो क्या होगी फिर? डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड में पढ़ा था बेटा, सेम टू सेम ये चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अरे सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ, तो कुछ सुनो यार, कुछ रिस्पॉन्ड करो, मतलब है ना, ऐसा लग रहा है आप लोग को परमानेंटली एनेस्थेशिया दे दिया है, बेहोश हो गए हो आप लोग। ठीक है, हाँ, तो फीडबैक एलिमेंट है ऐसा चैप्टर, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है, अपने को तो स्कोर करना है मार्क्स, तो इसके लिए रीड तो करना ही पड़ेगा ना। तो वहां पर जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के हाइड्रेट जिस तरह से पढ़े थे, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो साइज छोटी होने के वजह से ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं ना, और जो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग शो करेंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी तो हाई होगी ना, रिएक्टिविटी कम होगी, तो मतलब एसिडिक नेचर कम होगा, तो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगी फिर? डिक्रीजेस। ठीक है, सेम टू सेम जहां पे ग्रुप नंबर 15 का जो पढ़ा था वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो, तो फिर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ सर। के जो ओके फोर्टनाइटली सर, बाय आने सर। वाला है, फोर्टनाइटली टेस्ट में आने वाला है, वो कौन सा ग्रुप? 15। 15। ग्रुप नंबर 15। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हाँ ग्रुप सर। नंबर 15 के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पढ़ाए हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, वो सारे के सारे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक ओके है, सर। चलो फिर कल मिलते हैं, ओके परसों सर, अभी। बाय। हाँ सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।